السلام علیکم طلبہ. جماعت ہفتم میں مضمون جنرل سائنس سبق نمبر 10 آفت کے دوران حسن انتظام. اس سبق کے اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے قحط، بادل کا پھٹنا، سیلاب اور بجلی گرنا ان آفتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آفتیں کیا ہیں اور ان کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہے. اب آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آتش فشاں، سونامی اور طوفان یہ آفتیں کیا ہوتی ہے اور ان سے بچنے کے لیے ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. آتش فشاں بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو آتش فشاں کا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ یہ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ آتش فشاں ہوتے کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس سے اس طریقے سے لاوا بہنے لگتا ہے. لاوا جو ہے وہ گرم پتھر ہی ہوتے ہیں جو پگھل جاتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد میں یہ واپس سے پتھر ہی بنتا ہے، جس کی وجہ سے کئی ساری چٹانیں وجود میں آتی ہے، سمندر میں جزیرے وجود میں آتے ہیں. جس طرح سے اس گرم لاوے کے اطراف میں کالے پتھر ہے ویسے ہی یہ ہوتا ہے. بہت تیزی سے بہتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایسے بہتا ہے جیسے کہ ندی میں پانی بہت گرم ہوتا ہے. اس کی زد میں آنے والے تمام ہی چیزوں کو یہ جلا دیتا ہے. جب آتش فشاں پھٹتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اتنی تیزی سے پھٹتا ہے کہ اس کی قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. بہت گرم ہوتا ہے اور بہت جلدی اس کا لاوا بہت دور تک پھیل جاتا ہے. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اس سے دور رہا جائے. یہ دیکھیے کس طرح سے لاوا پھٹتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ ڈرون کیمرے کے ذریعے لی گئی تصویریں ہیں. بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے آتش فشاں کا ویڈیو دیکھا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ قدرتی عمل ہے، اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے. زمین کے اندر، زمین کے اندرونی حصے میں بہت زیادہ بے حد گرمی ہوتی ہے. اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی پگھل جاتے ہیں. اور پگھلنے کے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ گرم ہو جاتے ہیں تو وہ ابلنے لگتے ہیں. جب یہ ابلتے ہیں تو یہ پھٹ کر زمین سے باہر آتے ہیں اور یہی کہلاتا ہے آتش فشاں. اور اسے ہی ہم آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں. جب وہ پھٹ کے زمین سے باہر آتا ہے تب ہم اسے آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں. جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو لاوا، بھاپ، گرم کیچڑ، گندھک جیسے کیمیائی مادے
ज़मीन की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेकड़ियाँ और पहाड़ वजूद में आते हैं। आतिशफ़िशा के ज़रिए खारिज होने वाली राख और गैसों के ज़रिए माहौल आलूदा हो जाता है। अक्सर औक़ात बच्चों, जब ये आतिशफ़िशा वग़ैरह फटते हैं तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे आलूदगी होती है कि कई दफ़ा तो ये जो हवाई जहाज़ सफ़र करते हैं, तो अगर उनका जो हवाई जहाज़ का जो रास्ता है, अगर वो आतिशफ़िशा के इलाके में से होकर गुज़र रहा हो, तो ये जो हवाई कंपनियाँ होती है उस जहाज़ को मुलतवी कर देती है, उस जहाज़ की परवाज़ को मुलतवी कर देती है, क्योंकि अक्सर औक़ात तो हादसे का भी डर होता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जहाज़ की ये जो धुआं होता है, ये कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ होता है। इसकी वजह से जो है वो हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए उस जहाज़ की परवाज़ ही वो कंपनी जो है मनसूख कर देती है। कई दफ़ा आतिशफ़िशा की फटने की वजह से बारिश भी होती है। गर्म हवा की वजह से दर्जे हरारत भी बढ़ जाता है, और आतिशफ़िशा के फटने की वजह से जो गर्म लावा ज़मीन से बाहर निकलता है, उसकी वजह से कई सारी बस्तियाँ, जंगल वगैरह जल जाते हैं और वो उस पिघले हुए लावे में दफ़न हो जाते हैं। उन बस्तियों का नामो निशान भी मिट जाता है। आतिशफ़िशा जो है जिस तरह ज़मीन पर होते हैं, उसी तरह ये समंदर के अंदर भी पाए जाते हैं। ज़मीन के आतिशफ़िशा के फटने से जो मादे खारिज होते हैं, वही मादे समंदर में पाए जाते हैं। समंदर में मौजूद आतिशफ़िशा के फटने से जज़ीरे वजूद में आते हैं। आतिशफ़िशा के फटने को टालना, इसके फटने के बाद में इसे रोकना या इसे काबू करना मुमकिन नहीं होता है। सिर्फ़ हम इसकी पेशन गोई कर सकते हैं, और इसके लिहाज से इसके फटने से पहले कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीरें हम इख्तियार कर सकते हैं। आतिशफ़िशा अगर फटता है तो हम सिर्फ़ एक ही एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, और वो ये है कि जहाँ तक हो सके हमें उस इलाके से जहाँ आतिशफ़िशा फट रहा है या फटने वाला है, उससे दूर रहना चाहिए। और अगर जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उस इलाके के रिहायशी है, उन्हें वहाँ से दूर लेकर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर देना चाहिए। हम बस यही एक अमल आतिशफ़िशा से बचाव के लिए कर सकते हैं। सुनामी बच्चों, इससे पहले हमने आतिशफ़िशा के फटने के बारे में पढ़ा था। क्या आतिशफ़िशा क्या होता है, किस तरह से फटता है। अब हम सुनामी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले आपको ज़लज़ला किसे कहते हैं ये बात अच्छी तरह से पता है। हमने शशुम में 6ठी क्लास में इससे पहले ज़लज़ला क्या होता है, ये किन वजूहात की वजह से आता है, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ज़मीन के हिलने की वजह से ज़मीन के जो प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटें, वो आपस में टकराती है। इनकी वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह पे इर्तियाश होता है, ज़मीन हिलती है, और इसे ही हम कहते हैं ज़लज़ला। ज़मीन की तरह ही समंदर की सतह में भी ज़लज़ले आते हैं, वहाँ भी आतिशफ़िशा फटते हैं। समंदर में ज़लज़ले आने पर
باہر خارج ہونے والی توانائی پانی کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے۔ نتیجے میں سمندر میں مخصوص قسم کی لہریں بنتی ہے۔ یہ جہاں بنتی ہے وہاں تو یہ اتنی اونچی نہیں رہتی، لیکن جیسے جیسے یہ دور ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کی رفتار بھی بڑھتی ہے اور ان کی اونچائی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اکثر اوقات ان لہروں کی رفتار جو ہے وہ 800 تا 900 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تیز ہوتی ہوں گی۔ ہماری جو گاڑی ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہم 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 800 تا 900 کلومیٹر فی گھنٹہ یہ رفتار کتنی تیز ہے۔ اور جب یہ اس رفتار کے ساتھ ساحل سمندر پر آتی ہے، ساحلی حصوں پر پہنچتی ہے، تب ان لہروں کی بلندی جو ہے وہ 100 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ اتنی بلند لہریں ہونے کی وجہ سے یہ جو لہریں ہیں ہم انہیں عام لہریں نہیں کہتے بلکہ سونامی لہریں کہتے ہیں۔ سونامی یہ ایک جاپانی لفظ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کنارے سے آ کر ٹکرانے والی پانی کی لہریں۔ جاپان میں اکثر سونامی آتی رہتی ہے، اسی لیے یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے مشہور ہوا اور اس کے بعد میں یہ پوری دنیا میں استعمال کیا جانے لگا۔ آئیے ہم ایک ویڈیو کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ سونامی جب آتی ہے تو کس طرح سے آتی ہے اور اس میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔
सुनामी के तबाहकुन असरात। बच्चों, सुनामी जब आती है तो इससे जिस तरह से ज़लज़ले से नुकसान होता है, बड़े पैमाने पर होता है, जानी माली नुकसान भी होता है, उसी तरीके से सुनामी से भी बहुत बड़े पैमाने पर हमें नुकसानात होते हैं। इससे तामीर करदा इमारतें और दीगर तामीरात ढह जाती है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। किनारे की करीब की कश्तियाँ और जहाज़ों को नुकसान पहुंचता है। दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं। बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकती है। किनारे के करीब की ज़मीन दलदल में बदल जाती है। नक़्ल व हमल में रुकावट पैदा होती है। समंदर से मरबूत सनतों पर मुज़ीर असरात की वजह से आवामी ज़िंदगी में खलल पड़ता है, जैसे कि माहीगिरी वगैरह वगैरह। बंदरगाहों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। बंदरगाह मतलब वो जगह जहां से समंदरी जहाज़ आते हैं, रुकते हैं। एक तौर पे ऐसा समझ लीजिए कि समंदरी जहाज़ का स्टेशन जिसे हम कहेंगे, उनको बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। एहतियाती तदाबीर। बच्चों, जब सुनामी आती है तब हम उसे रोक तो नहीं सकते। सुनामी से बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हमें, अगर हम किसी वजह से अगर ज़लज़ले, समंदर में आने वाले ज़लज़ले का इम्कान लगा लें या उसके बारे में मालूमात हासिल हो जाती है हमें कि भाई यहाँ पर इस हिस्से में ज़लज़ला आया है, तो हमें पता है कि भाई अब ये ज़लज़ला कुछ ही देर में बड़ी बड़ी लहरों में बदल जाएगा और ये साहिल की तरफ आएंगे। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितने दूर का इलाका जो है वहाँ पे सुनामी आ सकती है, उतने इलाके के लोगों को किसी महफूज मुकाम पे लेकर जाएं और समंदर में आने वाले ज़लज़लों का हम खला में मौजूद मसनूई सैयारों की मदद से अंदाज़ा लगाएं। तूफ़ान। अज़ीज़ बच्चों, पिछली जमात में हमने तूफ़ान किस तरह से बनते हैं, किस तरह से पैदा होते हैं, इनके असरात क्या क्या होते हैं, इस चीज़ का मुताला किया था। आइए इस सबक में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम तूफ़ान से घिर जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या अगर हमारा इलाका ऐसा है जहाँ बार बार तूफ़ान आ सकते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। जिस दरख्त के इमारत पर गिरने का ख़तरा हो उसकी टहनियाँ पाबंदी से काटें और नुकसान से बचें। अगर आप घर से बाहर हैं तो जहाँ हो उसकी इत्तला करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को दें। आप ख़ुद बाहर हो तो महफूज मुकाम पर आसरा लें। गैस रेगुलेटर्स के स्विच और लाइट बंद कर दें। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आने वाली आफत से आगाह करें। उन्हें महफूज मुकामात पर जाने का मशवरा दें। जो लोग घर से दूर हो इनको अपने घर में कुछ वक्त आसरा दें। बच्चों, आपकी दरसी जुग्राफिया की दरसी किताब से सबक हवाएं, इस सबक से हम तूफ़ान से मुताल्लिक़ मालूमात पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये सबक
آفت کے دوران حسن انتظام مکمل ہوا۔ بچوں آپ لوگ اس سبق میں دی ہوئی مشق کے سوالات حل کریں، انہیں اپنی بیاض میں لکھیں اور لکھ کر مجھے میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کریں، یا مناسب وقت نکال کر ماسک وغیرہ پہن کر اسکول میں آئیں اور مجھ سے چیک کروا لیں۔ السلام علیکم۔